So we will brief for the session which we have covered in last lecture. So we have seen the first component of the financial system, that is a financial institution, and we have seen that it is being established by the government, and mainly it will be permission will be granted to make a financial institution only by the central government and state government as per the need. And what is the purpose? It is it is basically for giving loan on other financial services, that is short term loan, which we have seen less than 1 year, medium term loan 5 years, less than 5 years, long term loan that is greater than 5 years, and again development of various other sectors of the country like industrial, agricultural, import export sector. So then we have seen the merits of financial institution. What is the importance of financial institution? That is long-term finance, provide karna more than 5 years. Managerial advice, providing some uh, valuable advice to the other business organization. Then subscribe to of securities. Then underwriters, guarantee loan. It will act as a guarantor to get loan from other bank for a particular person or business person. Then loan in foreign currency if a person wants, a company wants to purchase some heavy machinery from out of country, so their foreign currency is required for the transaction purpose. So that also service will be given by the financial institution. And then there were three limitations which we have seen, that limitations where the financial institutions uh, takes a lot of time. It's a time consumption process to execute one services. एक सर्विस कुछ लेना है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट प्रोसेस होते हैं, एक्सपेंसिव प्रोसेस हो जाता है, कॉस्टली हो जाता है, प्रोसेसिंग चार्ज लगते हैं। जैसे हम अगर होम लोन लेते हैं तो उस पर प्रोसेसिंग फीस लेते हैं कुछ 5%, 10%। तो वो सब एक हमें डिसएडवांटेज नजर आता है। फिर दूसरा है नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड। जैसे डिविडेंड मैंने बताया एक प्रॉफिट होता है, एक कंपनी का प्रॉफिट अगर कोई अपने शेयर होल्डर्स को देता है तो उसे हम डिविडेंड बोलते हैं। तो वो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रेस्ट्रिक्ट कर सकता है कि आप इसको ना दो, क्योंकि देना कंपलसरी नहीं है। ओके, सो दैट इज द नेक्स्ट important factor. And the third one is the restricting the power of the company. तो पावर ऑफ द कंपनी मतलब अगर कोई लोन लेता है तो वो कंपनी जिस फाइनेंशियल नॉमिनेट इंस्टीट्यूशन से लोन लेगा। हाँ वालेकुम सलाम, एक मिनट ना होल्ड करना है। या हेलो। हाँ, सो देयर वर थ्री लिमिटेशंस ये है, जैसे रेस्ट्रिक्टिंग द पावर ऑफ द कंपनीज। ओके, सो हर कंपनी के काम में इंटरफेरेंस करना, दैट विल बी द डिफिकल्टी फॉर द कंपनीज टू वर्क। सो ये लिमिटेशंस थे। अब हम नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन देख रहे थे कि व्हाट आर द डिफरेंट financial institutions are. So the financial institutions, we have seen that it is classified into two categories. One is banking and second one is non-banking financial institutions. So first हम लोग ने देखा banking financial institutions. Then banking financial institutions are working in many sectors. इसका हमने देखा था कि ये मल्टी डिसिप्लिनरी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इनका एक एक्टिविटी नहीं रहता है, बहुत सारे एक्टिविटीज
ये वर्क करते हैं। ओके, मल्टी सर्विसेज। ठीक है, अब इनमें दो टाइप के आपको मिलेंगे। एक शेड्यूल्ड बैंक होता है, बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कौन आता है, बैंक्स आते हैं। और बैंक्स में दो टाइप के हैं, शेड्यूल्ड बैंक है और एक दूसरा है नॉन शेड्यूल्ड बैंक। अब शेड्यूल्ड बैंक का मीनिंग मैंने बताया, जैसे एक एक्ट आरबीआई बनाया है सेकंड शेड्यूल, उसमें जिस बैंक का नाम रहेगा उसको हम शेड्यूल्ड बैंक बोलते हैं। और नॉन शेड्यूल्ड बैंक मतलब जो आरबीआई के एक्ट में नहीं आते हैं, दोज हु आर नॉट अंडर द पॉलिसी ऑफ आरबीआई which the act which was released in 1934, those are called as non scheduled bank। फिर इसमें शेड्यूल बैंक के अंदर हमने दो टाइप अवेलेबल है। एक कहता है कमर्शियल बैंक, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स अवेलेबल है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स वो है जो गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, आरबीआई के अंदर आते हैं, उसे हम पब्लिक सेक्टर बैंक बोलते हैं। जैसे एसबीआई बैंक हो गया, पीएनबी बैंक हो गया, सेंट्रल बैंक हो गया, इंडियन बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया। तो ये सब कौन से बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है। ओके, इट इट इज गवर्न बाय दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इनके रूल सब मैनेज वही करते हैं। और दूसरा होता है प्राइवेट बैंक जिसे बोलते हैं हम एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। तो ये सब प्राइवेट बैंक है। ओके, उसके बाद फॉरेन बैंक जो दे आर एस्टैब्लिश इन आउटसाइड द इंडिया कंट्री। ओके, बट दे आर हैविंग अ ब्रांचेस इन इंडिया, जो फॉरेन में ऑलरेडी उनका मेन से हेड ऑफिस है, और उसकी सब्सिडी मतलब उसके जो ब्रांचेस है वो इंडिया में भी ओपन है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इज नॉट इंडियन बैंक, ये एक फॉरेन बैंक है। उसका एक सब्सिडी बैंक यहाँ पे ओपन किया गया। एंड नेक्स्ट इज रीजनल रूरल बैंक, जो रूरल एरिया में, ग्राम पंचायत में, वहाँ पे जो छोटे छोटे बैंक होते हैं उसको हम रीजनल रूरल बैंक्स बोलते हैं। तो ये सब बैंक्स किसमें आते हैं, कमर्शियल बैंक के अंदर आते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो पब्लिक सेक्टर बैंक पहले 24 थे स्टार्टिंग में। ओके, अब आपको पता होगा कि कुछ 14 बैंक मर्ज हो गया है और दे हैव बिकम वन बैंक, सेंट्रल बैंक बन गया है, एक कॉमन बैंक में आ गए, मर्जिंग हो गया है। तो अभी टोटल 12 पीएसयू बैंक अवेलेबल। पब्लिक सेक्टर बैंक कितने अवेलेबल है अभी, 12। ओके, प्राइवेट बैंक तो काफी, जैसे आईसीआईसीआई है, एचडीएफसी है, कोटक महिंद्रा बैंक है, ये सब प्राइवेट बैंक है। फिर उसके बाद कोऑपरेटिव बैंक, these are the cooperative they are again three types: state cooperative bank, district cooperative bank and other cooperative bank। तो ये सब cooperative banks अलग होते हैं, corporation bank, mercantile cooperative bank, spoken mercantile cooperative bank। तो these are all cooperative banks। ओके, अब उसके बाद आगे हम देखते हैं कि नेक्स्ट कौन से बैंक्स अवेलेबल है। बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो आपको समझ में है, ये बैंक्स कौन कौन से टाइप के हैं और क्या कैटेगरी होती है, वो आपको क्लियर है। यस सर। हाँ, अब हम जाते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरफ। अब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, वो देखते हैं हम। जैसे मैंने बताया, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बेसिकली वर्क्स इन वन पर्टिकुलर सेक्टर। ठीक है, मतलब एक ही एक ही डायरेक्शन में उनका लोन देना रहता है। हाँ, और दूसरी बात, इनके पास सेविंग अकाउंट नहीं होते, नो सेविंग अकाउंट। ओके, इनके पास आप कुछ भी पैसा डिपॉजिट, इंडिविजुअल इन्वेस्टर इन बैंक में जाके अपना सेविंग अकाउंट ओपन नहीं कर सकता है। तो दिस इज बेसिकली हैविंग देयर ओन अमाउंट एंड दे लेंड दिस अमाउंट टू डिफरेंट प्री ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर। एक एक पर्टिकुलर सेक्टर को ही वो लोग फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे हाउसिंग फाइनेंस। अब हाउसिंग फाइनेंस जो होते हैं वो सिर्फ खाली लोन ही प्रोवाइड करते हैं, किसके लिए, हाउसेस को। एग्जैक्टली, होम लोन खाली प्रोवाइड करेंगे। सो दे आर कॉल्ड एज एचडीएफसी हाउसिंग फाइनेंस।
अभी जैसे एचडीएफसी का भी एक दो बैंक है, एक एचडीएफसी बैंक होता है जो खाली सेविंग अकाउंट और वो भी लोन प्रोवाइड करता है, वो पर्सनल लोन भी देता है, होम लोन भी देता है, सब कुछ देता है। तो इसके अलावा एक और एचडीएफसी लिमिटेड करके है बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड, एक एचडीएफसी बैंक लिमिटेड है और एक एचडीएफसी लिमिटेड, देखो दो अलग नाम है, बट दे आर कमिंग अंडर वन पर्टिकुलर अम्ब्रेला ओनली, एचडीएफसी। एचडीएफसी एक बड़ी कंपनी है, बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उसके कई सब्सिडीज ब्रांचेस है, कंपनीज है। एक है एचडीएफसी लिमिटेड, बैंक लिमिटेड, देखो वर्ड नाम देखो, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड। अब ये एचडीएफसी बैंक लिमिटेड जब बनाया तो वो किस में चला गया, बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में चला गया। और फिर उन्होंने एक बनाया एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी लिमिटेड किस में चला गया, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, समझ में, दो अलग सेक्टर में चले गए। और एचडीएफसी लिमिटेड का काम क्या है, ओनली प्रोवाइडिंग हाउसिंग फाइनेंस, लोन, खाली लोन देने का काम। इज दैट क्लियर, समझ में आपको। उसी तरह अब इसके अंदर टाइप्स देख लेते हैं। देखो आपको समझ में, इसमें सेविंग अकाउंट नहीं होता, इसमें कोई सेविंग अकाउंट नहीं क्रिएट करता, मतलब इंडिविजुअल पर्सन इसके अंदर पैसे डिपॉजिट नहीं करते, इससे खाली पैसे लिए जाते हैं लोन फॉर्म में, और ये लोग कुछ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं इसके ऊपर। अब इसके टाइप्स देख लीजिए, इसके पहला टाइप है डेवलपमेंट फाइनेंस, सेकेंड है इंश्योरेंस, थर्ड है हाउसिंग फाइनेंस, फोर्थ टाइप है म्यूचुअल फंड, और एंड वेंचर कैपिटल। देन फिफ्थ टाइप है इसके एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ओके, तो ये पांच टाइप के सेक्टर्स जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आते हैं। तो अब इसमें पहला देख लेते हैं डेवलपमेंट फाइनेंस क्या है। डेवलपमेंट फाइनेंस इट्स अ बेसिकली डील्स विद द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द कंट्री। ये एक ऐसा बैंक है, ओके, और जो ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री के ऊपर वर्क करता है। जैसे उसके अंदर ओवरऑल ग्रोथ में हम क्या देखेंगे, एक इंडस्ट्रियल ग्रोथ होता है, फिर एक एग्रीकल्चर ग्रोथ होता है, ठीक है, और फिर उसके बाद होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट। क्लियर है, ये तीन सेक्टर के ऊपर जो लोन रिक्वायरमेंट होता है वो लोन डेवलपमेंट फाइनेंस बैंक देती है। अब ये डेवलपमेंट फाइनेंस बैंक कौन से हैं, ये इनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। जैसे डेवलपमेंट फाइनेंस बैंक का पहला है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, आईडीबीआई। ये बैंक है जो खाली इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन को लोन प्रोवाइड करती है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को लोन प्रोवाइड करती है और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को लोन प्रोवाइड करती है। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को जो लोन प्रोवाइड करती है, दिस आईडीबीआई, ये जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक है, ओके, आईडीबी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक जो है ये अगेन फर्दर डिवाइडेड है टू कैटेगरी में। एक है लार्ज स्केल, जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री को लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है, और एक है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को। अभी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को जो लोन प्रोवाइड करते हैं उस बैंक का नाम क्या है, उस बैंक को बोलते हैं हम आईएफसीआई। क्या बोलते हैं, आईएफसीआई। व्हाट इज आईएफसीआई, आईएफसीआई इज
इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आप समझ में, टर्मिनोलॉजी ध्यान में रखिए, कौन किसको क्या देता है। अब देखो, डेवलपमेंट फाइनेंस बैंक कौन है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। ये एक ऑल ओवर इंडिया में इसका नाम है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। अब ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक किसको लोन देती है? दो टाइप की इंडस्ट्रीज को लोन देती है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अब लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को कौन लोन देने वाला है, उसका एक अलग यूनिट बनाया गया, उसका नाम है IFCI, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, समझ रहे आप लोग? ठीक है, और एक और यूनिट है जिसका नाम है IDBI, IDBI। ओके, IDBI को क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये दोनों बैंक, ये दोनों यूनिट है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, समझ रहे हैं? ये आम आदमियों के लिए नहीं है, ये किसके लिए है? इंडस्ट्रियल, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज कौन सी है? जिनका टर्नओवर आपका 100 करोड़ के ऊपर है। ओके, वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है। अब लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को लोन कौन देने वाला है? IFCI एंड IDBI। क्लियर है? और इसके अलावा एक और है यूनिट जिसका नाम है IRCI। अब नहीं अब ये सॉरी, IRBI। IRBI क्या है? ये कॉम्बिनेशन है इसका, ICICI बैंक का। ICICI बैंक प्लस एक और कम बैंक है IRCI। ये दोनों बैंक मिला के नाम बनता है IRBI। ओके, एंड दिस बैंक गिव्स these three financial institutions provide loan for large scale industries। समझ रहे आप लोग? यस, आप लोग समझ रहे क्या क्या टर्मिनोलॉजीज है? यस हेलो? सर। देखो, ये सब टर्मिनोलॉजीज हमें ध्यान में रहना चाहिए, कौन किसको लोन देता है। सबको, सब यूनिट को अलाउड नहीं है सभी को लोन देने के लिए। जिसको जो लोन चाहिए उधर ही अप्रोच करना पड़ता है लोन लेने के लिए, ये अमाउंट लेने के लिए। ठीक है, तो ये नाम हमें हमें मालूम होना चाहिए, क्लासिफिकेशन। ठीक है, उसके बाद ये जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक है, अब ये जो मैंने आपको नाम बताया ना, लार्ज स्केल, अब स्मॉल स्केल बताता हूँ। स्मॉल स्केल के लिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए कौन है? जिनका टर्नओवर कम है, स्मॉल कंपनी से, उसको हम उसके लिए NSIC, NSIC, नेशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन। अब ये सब नाम याद रखिए, ये आपको यूज में आते हैं, या कभी कभार अगर कोई आप बैंकिंग के एग्जाम देते हैं तो ये सब पूछा जाता है इन ऑब्जेक्टिव फॉर्म। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन। आप समझ रहे? देखो, लार्ज स्केल के लिए कौन कौन है? IFCI है, IDBI है, IRBI है। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए कौन है? NSIC, नेशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन। ठीक है, यस, अंडरस्टूड। अब यस आगे देखते हैं। अब ये एक सेक्टर हो गया, ये कौन सा सेक्टर का मैंने बताया? अगर इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंडस्ट्री है, अगर उसको लोन चाहिए तो किसके पास जाएगा? अगर वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है तो उनको IFCI को रिपोर्ट करना है, IDBI को रिक्वेस्ट करना है फॉर लोन। और अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है तो NSIC को रिपोर्ट रिक्वेस्ट करेगा लोन के लिए, उनके आगे काम करने के लिए। ठीक है, उसके बाद आता है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। अभी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए कौन है, कौन से सेक्टर्स है? ना, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक कौन है? ठीक है, अब एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक सिंपल है, ऑल इंडिया लेवल पे, मतलब पूरे इंडिया को देखने के लिए एक यूनिट बनाई गई जिसको बोलते हैं नाबार्ड। क्या बोला जाता है? नाबार्ड। आपने सुना होगा नाबार्ड। इट इज अ वेरी मेन यूनिट जो यूज होती है फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल फाइनेंस टू द एग्रीकल्चर सेक्टर। इसका फुल फॉर्म है नेशनल
बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका बिल्डिंग आप देखेंगे बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में है। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में इसका बड़ा ऑफिस है जो ऑल इंडिया एग्रीकल्चर सेक्टर को लोन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मालूम होना चाहिए कि एग्रीकल्चर को अगर कोई एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट उसको पैसे की जरूरत है तो वो किसको रिक्वेस्ट देगा? तो इट इज गिवन टू नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, समझा आपको? ये है, सर इनका बैकिंग कौन करता है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेल आप जैसे फॉर एग्जांपल आप जीएसटी पे करते हो, टैक्स पे करते हो, है ना? हम जीएसटी देते हैं, टैक्स पे करते हैं, वो पैसे किसके पास जाते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास डिपॉजिटरी अमाउंट कलेक्ट हो जाता है, फिर वो क्या करते हैं, वो जो अमाउंट है टैक्स डिपार्टमेंट से जो अमाउंट कलेक्ट होके आता है वो ये सब बैंक्स में वो लोग डिप्लॉय करते हैं। फिर जब ये बैंक के पास पैसे आ जाते हैं, नाबार्ड ये सब के पास, तो ये लोग लोन देते हैं, किसी को भी लोन दिए। अब लोन देने के बाद उनपे कुछ नॉमिनल इंटरेस्ट चार्ज करते हैं और वो बंदा वापस से नाबार्ड को ईएमआई फॉर्म में रिटर्न देता है। समझ में? इन्हीं से इंडिविजुअल पैसे। लेवल पे जैसे? इंडिविजुअल लेवल पे देखो, आपको उनकी कुछ पॉलिसी है ना, जैसे आप कभी लोन लेने जाते हो तो उनकी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देते हैं ना। तो अगर आप एग्रीकल्चर है, आपके पास लैंड है बहुत बड़ा और आप एग्रीकल्चर में पैसे इन्वेस्ट करना चाहते, पैसे चाहिए आपको उसको काम, उसमें काम करने के लिए, तो आप उनके ऑफिस में जाएंगे नाबार्ड के, उनकी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आप पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद आप उसमें पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप देखो, एग्रीकल्चर कोई और कोई भी आदमी नहीं कर सकता। हम जैसे लोग अभी एग्रीकल्चर में जाएंगे कि हम खेती बाड़ी करें तो वी आर नॉट एलिजिबल। आप समझ रहे हैं? हमको परमिशन नहीं मिलेगा। अगर आप एग्रीकल्चर लैंड खरीदने जाओगे तो भी हमको परमिशन नहीं, हम नहीं खरीद सकते। किसको एलिजिबिलिटी है? जो पहले से खेती बाड़ी करते आया है, जो पहले से एग्रीकल्चर में था, जिनके डैडी ग्रैंडफादर सब एग्रीकल्चर में ही है और उसी में वो लोग का काम चल रहा है, तो उनको ही परमिशन है, वही लोन लेते हैं। समझ रहे हैं आप? ये सुनो, तो यस सर। हाँ, तो यहाँ पे लोन अगर लेना है आपको तो नाबार्ड इज द मेन बॉडी, जो रेगुलेटरी बॉडी है जो लोन प्रोवाइड करती है, एग्रीकल्चर नीड को फुलफिल करती है। उनका इंटरेस्ट रेट अलग रहता है, कम रहता है, और बहुत सारे स्कीम्स रहती है जिसमें किसान लोग, फार्मर्स लोग अप्लाई करते हैं एंड दे गेट द लोन। ठीक है, समझ में आ रहा है? और सिमिलरली ये तो ओवरऑल इंडिया लेवल पे एक मेजर यूनिट हो गया। वैसे ही स्टेट लेवल पे भी बहुत सारे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक्स अवेलेबल है स्टेट लेवल पे, तो उसको हम, उसको भी नाम दिया गया है। स्टेट लेवल पे भी कुछ एग्रीकल्चर मतलब दिस एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक्स आर अवेलेबल। उसमें एक है एसएलडीबी, एसएलडीबी जिसको बोलते हैं हम स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, और दूसरा एक होता है पीएलडीबी। पीएलडीबी लोकल लेवल पे, लोकल मतलब जैसे ग्राम पंचायत लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो वहां पे एक होता है पीएलडीबी, प्राइमरी लैंड डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, आपको समझ में आया? तो ये देखिए, आप हर एक को देखेंगे ना, इनकी पर्टिकुलर थीम है, वो दूसरे किसी टाइप के लोन नहीं देते, सिर्फ एक ही टाइप का लोन देंगे। और उनके पास कुछ सेविंग अकाउंट नहीं है, वो डायरेक्टली लोन देते हैं और उसके ऊपर ईएमआई मंथली चार्ज करते हैं। ओके, उसके बाद एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक के बाद होता है एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेवलपमेंट बैंक। अब देखो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोई जो करते हैं, जो यहाँ से
माल बाहर भेजते हैं और वहां बाहर के माल इंडिया में लेकर आते हैं, तो इसमें जो इन्वेस्टमेंट लगता है, जो पैसा लगता है, अगर किसी को ये टाइप का बिजनेस स्टार्ट करना है और उसको लोन चाहिए, तो वो किसके पास जाएगा? वहां पे एक बैंक है जिसका नाम है एग्जाइम, एग्जाइम बैंक। ओके, क्लियर है? एग्जाइम बैंक मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेवलपमेंट बैंक। अब ये ट्रेडर्स को प्रोवाइड करते हैं जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, यहाँ से बाहर पैकिंग करके जो लॉजिस्टिक के लिए जो रिक्वायरमेंट है, जो माल खरीदने का प्रोक्योरमेंट के लिए जो अमाउंट रिक्वायर्ड है, वो उसको उस टाइप के बिजनेस को चालू करने के लिए लोन प्रोवाइड करता है, और वो उनका नॉमिनल जो उनका इंटरेस्ट रहता है वो चार्ज करते हैं, एंड देन जो लेता है उनको पे करना रहता है। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेवलपमेंट बैंक इस चीज के लिए काम करता है, एग्जाम बैंक। ध्यान में रखिए टर्मिनोलॉजीज, ठीक है? दीज आर स्मॉल स्मॉल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस व्हिच यूजुअली आस्क्ड इन द योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जहाँ पे भी आप अपियर करोगे, अगर फाइनेंस में आगे आपको काम करना है, तो ये सब टर्मिनोलॉजीज हमें ध्यान में रखना रहता है, ठीक है? समझ में आया आपको? तो डेवलपमेंट फाइनेंस बैंक समझ में आया क्या कर रहे हैं? व्हाट इज डेवलपमेंट फाइनेंस बैंक? डेवलपमेंट फाइनेंस बैंक बेसिकली डील्स विद द growth of the country. Okay, so it provides finance to the three important sectors where the India country growth depend, that is industrial sector, agriculture sector, and the third one is the export import sector. For industrial sector, there is a bank named Industrial Development Bank, and then the Industrial Development Bank is divided into two, depending upon the type of industries: large scale industries and small scale industries. For large scale industries, there are banks available, financial institutions are available: IFCI, IDBI, IRBI. And for small scale industries, NSIC is required, National Small Scale Industrial Corporation. फिर उसके बाद सेकंड सेक्टर जो है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक क्या है? वो कौन देखता है? नबार्ड देखता है। नबार्ड क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्लियर है? फिर उसके बाद ये ओवरऑल इंडिया को देखता है। नबार्ड टेक्स केयर ऑफ ओवरऑल इंडिया एग्रीकल्चर सेक्टर। उसके बाद उसके अंडर जो आते हैं कुछ, वो आता है स्टेट लेवल एंड लोकल लेवल। SLDB एंड PLDB कम्स अंडर नबार्ड। द नबार्ड बेसिकली मॉनिटर दीज टू यूनिट आल्सो, SLDB एंड PLDB। उसके बाद आता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेवलपमेंट बैंक। ओके, so this is a bank which gives a loan for those business sector who wants to work in export import section. अब नेक्स्ट फाइनेंशियल नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं इंश्योरेंस। ओके, इंश्योरेंस कंपनीज। The insurance companies are again the financial intermediaries, okay, that collects premium by issuing insurance policy. ओके, ये क्या करते हैं? पॉलिसी बेचते हैं। ये एक्चुअली में पैसे नहीं देते हैं, पॉलिसी देते हैं किसी को भी। स्कीम इंश्योरेंस की डिफरेंट पॉलिसीज होते हैं, उसकी कवरेज फैसिलिटी होती है। तो व्हीकल लोन मतलब इंश्योरेंस, फिर मेडिकल इंश्योरेंस, फिर बाद में आपका हाउस होम प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस दे प्रोवाइड। अब पॉलिसी वो देते हैं जैसे 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़, जितना भी, हर एक का एक कवरेज फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो उसका प्रीमियम चार्ज करते हैं। और वो प्रीमियम आप मंथली या ईयरली पे करते हो उस इंश्योरेंस कंपनी। जब भी कुछ उस प्रोडक्ट को या उस चीज को डैमेज होता है या उसका प्रॉब्लम होता है और वो पॉलिसी के अंदर आता है, तो इंश्योरेंस कंपनी विल गिव यू मनी टू कॉम्पेंसेट दैट डिफेक्ट, दैट प्रॉब्लम। ओके, तो ये एक टाइप का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जहाँ पे आपने एक चीज खरीदी है और आपने उसको इंश्योरेंस पॉलिसी के थ्रू एक इंश्योर करा लिया, एश्योर करा लिया कि ये अगर कुछ खराब होता है, प्रॉब्लम होता है, तो इसका मुझे इसका डैमेज का कॉम्पेंसेशन मिल जाएगा। तो आज आपने आजकल देखा होगा। हाँ सर, हाँ बेटा।
सर ये इंश्योरेंस वालों का पैसा किधर से आता है फिर? हाँ वही तो मैं बता रहा हूँ, देखो अभी सपोज फॉर एग्जाम्पल एक बंदे ने इंश्योरेंस कंपनी ओपन किया है, उस मेडिकल क्लेम का इंश्योरेंस कंपनी ओपन किया, ठीक है। और सपोज एक्स एक बंदा है, उसने आया कंपनी के पास, एक इंश्योरेंस लिया, सपोज उसने 1 करोड़ का इंश्योरेंस लिया, ठीक है। अब कंपनी वाले ने बोला कि आप 1 करोड़ का इंश्योरेंस ले रहे हो तो आपको मंथली 10,000 मुझे देना रहेगा, ठीक है। हाँ, सिमिलरली जब एक्स वाला आया था बंदा, उसके साथ उसके टाइम पे एक और वाई वाला भी आया और जेड वाला भी आया। अभी मैं 3 हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहा हूँ, 3 जन आए, उन्होंने भी सेम वैसे ही 1 करोड़ का लिया इंश्योरेंस, और उनके पास भी 10,000 आ गए, उसने भी 10,000 पे किया, ठीक है। फिर जेड वाला आया, उसने भी 1 करोड़ लिया का इंश्योरेंस लिया और वो भी 10,000 दिया। अब देखो, जब ये तीनों आए थे तो क्या ये तीनों बीमार थे? नहीं, है ना। ये सुनो, एक्स वाई जेड राइट। 3 पर्सन आए, तीनों जब अप्लाई कर रहे हैं तो इंश्योरेंस कंपनी, मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, मेडिकल टेस्ट कराती है तीनों का, पहले चेक करती है क्या ये लोग पहले से बीमार है क्या, उनका एज लिमिट देखती है, क्या एज लिमिट है, एज क्या है उनकी, है ना। और उससे अंदाजा लगा सकती है कि इसकी एज ये है और इसको कोई बीमारी नहीं है, और इसकी प्रीवियस हिस्ट्री रिकॉर्ड भी देखती है कि इसको कोई बीमारी नहीं थी, तो ये बंदा और 10 साल तक बीमार नहीं होगा, ये प्रोबेबिलिटी उनके पास आ जाती है। समझना है, यहाँ पे एनालिस्ट का काम आ जाता है, रोल आ जाता है। वो बताता है कि ये 35 साल का बंदा है, इसने इंश्योरेंस ले रहा है 1 करोड़ का, और ये प्रीमियम देने के लिए तैयार है 10,000 रुपए, ये बीमार तो नहीं है अभी, इसकी प्रीवियस हिस्ट्री भी देखा, ये बीमार नहीं है, इसको डायबिटीज नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसकी मेडिकल फैमिली मेडिकल हिस्ट्री भी बताती है कि कोई किसी भी मतलब हेरिडिटरी कोई बीमारी है नहीं इसको। तो अगर मैंने इसको ये इंश्योरेंस पॉलिसी बेच दिया तो इसके चांसेस होना बीमार का 5-6 साल तो नहीं होगा बीमार। ये सुनो, एग्री करते हो कि नहीं? यस सर। हाँ। अब देखो, अब जैसे तीनों ने एक साथ अप्लाई किए और तीनों की एनालिसिस इंश्योरेंस वाले ने कर लिया, मेडिकल इंश्योरेंस वाले ने कर लिया। अब तीनों ने ले लिया पॉलिसी, पॉलिसी क्या देगा, वो पेपर देगा, पेपर में लिख के देने वाला है, पैसे तो देगा नहीं 1 करोड़, है ना। वो तो पेपर में लिख के देगा कि 1 करोड़ की पॉलिसी इनको मैं दे रहा हूँ और विद दिस टर्म्स एंड कंडीशन, और नीचे स्टार मार्क लिखेगा कंडीशन अप्लाई। कंडीशन अप्लाई में बहुत सारे कंडीशन को अप्लाई कर देता है, जब आप लेने जाते हो तब मालूम पड़ता है, ठीक है ना। अब वो लेता है 10,000 रुपये हर महीना आपसे, आप दोगे हर महीना 10,000, 5 साल तक आप बीमार ही नहीं हुए, तो 5 साल तक आपने 10-10 हजार रुपये प्रीमियम भरा है, तो इंश्योरेंस वाले के पास पैसे आ गए, है ना। ये सुनो, यस। अब ऐसे, सर तो ऐसे जो प्राइवेट प्लेयर्स है तो वो हाँ तो मतलब टर्म्स एंड कंडीशन के साथ में एक्सप्लॉइट भी कर सकते हैं कॉमन मैन को हाँ ऐसे। तो करते ही है ना बेटा, इसलिए तो होता है ना इंश्योरेंस के ऊपर, इसलिए तो फेथ नहीं आता लोगों का ज्यादातर, बिकॉज दे, तो इसको कोई रेगुलेटरी बॉडी बॉडी भी होगा ना, जैसे आरबीआई। आरबीआई हाँ सारा इसके अंडर ही आता है क्या सर? हाँ, लेकिन कैसे होता है मालूम है आपको, पता है इंडियन लॉ इज सच अ ह्यूज सेक्शन कि उसमें आप कुछ भी मॉडिफिकेशन कभी भी कर सकते हो, कुछ लॉ आपके लिए एप्लीकेबल है तो कुछ मेरे लिए भी एप्लीकेबल है ना। आप वो लॉ प्रेजेंट करोगे तो मैं दूसरा लॉ आपको प्रेजेंट करूंगा उसको कॉन्ट्रडिक्ट करते हुए, इसलिए इंश्योरेंस कंपनी बच जाती है। अभी एक कॉमन पर्सन है, वो क्या करेगा, उसको लग रहा है गलत हो रहा है मेरे साथ, तो कहाँ जाएगा, कोर्ट ही जाएगा ना। अगर उसने कोर्ट में फाइल किया केस तो वो कितना लड़ेगा, जितना उसको पैसे नहीं मिलेंगे उतना तो कोर्ट में वो पैसा इन्वेस्ट कर देगा, तो इसलिए वो छोड़ देता है, जान दो नहीं जितना मिल रहा उतना ही चलेगा मेरे लिए, समझे। तो इंश्योरेंस यस सर। कंपनी इज यूजफुल फॉर रिच पीपल। इंश्योरेंस किसके लिए फायदेमंद है, अमीर लोगों के लिए,
गरीब लोगों के लिए नहीं फायदेमंद। अगर गरीब वाला इंश्योरेंस लेता है तो वो फंस जाएगा, प्रीमियम ही खाली भरते रहेगा, उसको रिजल्ट कुछ नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है आपको? तो इंश्योरेंस कौन लेता है? आपने Yes, देखा sir. होगा, अमीर अमीर लोग लेते हैं, उनकी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी रहती है, वो खुद ही जलाते फिर इंश्योरेंस से पैसे लेते, है ना? तो वैसा Right. होता है बेटा। तो ये सब इसलिए तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की नॉलेज होना बहुत जरूरी है कॉमन पर्सन को। दे शुड बी एजुकेटेड। इट्स नॉट लाइक वी शुड वर्क इन दिस सेक्टर, बट वी शुड बी नोन टू इट, वी शुड बी एजुकेटेड कि क्या हमारे लिए फायदेमंद है, कहाँ हमें नुकसान हो सकता है ना? तो आप समझे इंश्योरेंस कंपनी को पैसे कहाँ से आएंगे? अब ये 3 लोग 5 साल तक अगर आपको 10-10 हजार रुपए दे रहे हैं, तो मतलब 1 साल का इंश्योरेंस वाले के पास 1,20,000 रुपए जमा हो रहा है। 5 साल में आप मल्टीप्लाई करो, 10 लाख तक जमा हो गया। 3 जन का मैंने एग्जाम्पल लिया, ऐसे 50, 60, 100 लोग होंगे। 100 लोग का मल्टीप्लाई कर लो, उसके पास 5 करोड़ तो आ ही जाएगा। अब 5 साल में कोई एक भी बंदा आता है, या 5 साल के बाद भी कोई एक भी बंदा आता है कि मेडिक्लेम के लिए, तो पूरा 1 करोड़ तो वो क्लेम करेगा नहीं। वो उसमें से क्लेम करेगा 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख, इतना ही क्लेम करेगा ना उसके मेडिकल डॉक्यूमेंट के ऊपर, है ना? पूरा 1 करोड़ तो नहीं डिमांड करेगा, मेरा 1 करोड़ का मेडिकल क्लेम है, मुझे 1 करोड़ की तक का खर्चा लग गया मेरी बीमारी के लिए। नहीं ना, वो तो कितना लेगा? या तो ज्यादा 5 लाख या तो 10 लाख लेगा। तो आपके पास 5 करोड़ मतलब वो तो 1 ऑलरेडी। करोड़ सिर्फ पेपर पे ही है. हाँ, वो तो 1 करोड़ पेपर पे ही बेटा। दैट इज, वही तो, वो लोग पेपर बेचते हैं, पॉलिसी बेचते हैं। दे डोंट गिव। आप आपको अगर बीमारी, अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कार का इंश्योरेंस लेते हैं, तो कार का जो डैमेज हुआ पोर्शन है उसका ही अमाउंट देती है ना, पूरे कार का आपको पैसे थोड़ी ना दे देती है। इंश्योरेंस तो आप तो पूरी पूरी कार का लेते हो ना, और प्रीमियम भी आप पूरी कार के हिसाब से, लेकिन जितना डैमेज होता है उतना ही पैसा देती है ना। 1 लाख, 20 लाख, 50,000, 100, 1.5 लाख, 2 लाख, उसका ही खर्चा देगी ना आपको। पूरे कार 5 लाख की कार है तो 5 लाख पूरा थोड़ी ना आपको दे देगी। हाँ, वो रेयर केस की पूरी कार ही डैमेज हो गई, ये पूरी से मतलब अब वो उसको रिपेयर कर ही नहीं सकते, है ना? तब आपको देगा। लेकिन उसमें भी पॉलिसी क्या है कि आपने पूरे कार का, अगर हर सेक्शन का आपने अगर इंश्योरेंस लिया है, तो क्योंकि कार में भी डिफरेंट सेक्शन के हिसाब से लोग इंश्योरेंस लेते हैं ना। ये सुनो। Yes, sir. Yes. यस सर। हम्म। तो इंश्योरेंस कंपनी समझ में आया ना क्या करते हैं? ओके। Scam है basically. सब जगह स्कैम है, पैसे जहाँ आएंगे बेटा स्कैम ही रहता है। सर लेकिन ये लोग भी किधर तो इन्वेस्ट करते रहेंगे ना अल्टीमेटली. यस, क्यों नहीं करते? इंश्योरेंस कंपनी इन्वेस्ट करती है ना कैपिटल मार्केट में, यहाँ पे शेयर मार्केट में, डिबेंचर्स में। बिना इन्वेस्टमेंट के ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन चलेंगे ही नहीं बेसिकली। यस, करेक्ट। दे वो लेते हैं हमारा ही पैसा और हमारे पैसे से कमाते हैं वो लोग, और फिर बाद में हमें ही हम ही से वापस से प्रीमियम भी ले लेते हैं। सो ये है बेटा, बहुत सारी चीजें इसमें है, फैक्टर्स हैं। हर फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, ये अभी इंश्योरेंस कंपनी जैसे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी LIC जो है, LIC का मेन काम है खाली IPO उठाना, इनिशियल पब्लिक ऑफर जो होता है ना, जब कोई नई कंपनी शेयर मार्केट में आती है तो प्राइमरी मार्केट में वो अपना शेयर देती है, तो LIC इज द मेन बिडर, सबसे ज्यादा वो पैसा लगा देती है उनके IPO को खरीदने के लिए। क्यों? क्योंकि जब वो IPO को खरीद लेती है और उनको अलॉटमेंट मिल जाता है तो वो नेक्स्ट डे बेच डालते हैं, और वो शेयर हमेशा लिस्टिंग के दिन, जिस दिन वो मार्केट में आता है उस दिन उसका भाव डबल रहता है। मतलब 10 रुपए का शेयर था, उन लोग 10 रुपए में खरीदते हैं, मार्केट में जब वो बिकता है पहली बार तो 20 रुपए में बिकता है, और 10 का 20 हो गया, फटाफट बेचे, पैसा कमाए, निकल गए। और पैसे किसके रहते हैं? LIC कंपनी के पास जो पैसे वो किसके रहते हैं? हमारे रहते हैं। लेकिन हमको वो पूरा जो उसको प्रॉफिट मिलता है वो हमको पूरा थोड़ी ना देता, हमको सिर्फ वो 1%, 2% जो उसका रहता है जिसपे हमें हम अप्लाई मतलब हमारी पॉलिसी डिफाइन होती है, उतना ही मिलता है। सर इंश्योरेंस वगैरह लेने के बजाय अगर अपन
और स्टॉक मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट करे तो वही ज्यादा बेहतर हुआ ना फिर। बेहतर है बेटा, लेकिन कैसा है, यहाँ पे मैंने आपको बताया एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। बेहतर है दी, यहाँ पे जो पर्सन काम करते हैं दे आर फुल्ली एजुकेटेड, दे आर फुल नॉलेज ऑफ दिस procedures, so they are happy and investing in that and earning a lot. When you are educated you also invest and you will earn a lot. That is the importance ना, यही तो फैक्टर है। अगर आपको नॉलेज नहीं रहेगी तो आप पैसे गंवा दोगे, आपको पता नहीं चलेगा, आपने गलत शेयर में इन्वेस्ट कर दिया और वो शेयर डूब गया तो आपके पैसे चले गए ना। यस सर, सर आई एम आल्सो लर्निंग इन स्टॉक मार्केट सर, कोर्स कर रहा हूँ, वेरी गुड, बट सीख रहा हूँ थोड़ा अभी, मतलब 1 महीने मतलब से। कैसा कोर्स कर रहे हो आप? स्टॉक मार्केट में मतलब शरिया बेस्ड, तो वो बताते हैं, मतलब बहुत अच्छा बता रहे। एक 10 डेज 20 डेज पढ़ा है, फिर मतलब अपना जो बाकी स्टूडेंट्स है वो डिस्कशन एवरीडे करते, 6 मंथ पेपर ट्रेडिंग, देन अगर करना है तो मतलब खुद से कर सकते हैं। लेकिन आप कितना अमाउंट पे करें? अमाउंट तो 500 सर, वो तो नेग्लिजिबल है, मत जितना वैसा मत मतलब करो लर्न बेटा, हुआ है। वैसा मत करो। मैं आपको बताता हूँ, आपको जरूरत ही नहीं आप कहीं पे इन्वेस्ट करो, आप खुद से कर सकते हो स्टडी। नो नीड ऑफ पेइंग एनी अमाउंट टू एनीवन। आप समझ यस रहे सर, हैं? बट वो वो तो क्यों 10 मालूम डेज है का था, आपको? बाकी फिर। मैं क्यों बता रहा हूँ मालूम है? बिकॉज दे विल टीच यू एंड दे विल मे इनकरेज यू सच, बिकॉज ये कैसे एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसमें बहुत अट्रैक्शन होता है, लॉट ऑफ अट्रैक्शन, बिकॉज यू गेट मनी विद इन अ डे और 2 days। ओके, अट्रैक्शन बहुत है, बट लेकिन कैसा लॉस भी बहुत है, इसलिए ना थोड़ा सा हमें यस सर, इसको, यस सर, हाँ हाँ, सर, यस। स्टूडेंट्स को स्टडी, कलेक्ट करके शेयर पंप करा के फिर उसको डंप कर देता है, ऐसा भी होता है ना। हाँ वही तो होता है आईपीओ में। आईपीओ में क्या होता है, यही तो होता है, उसको रेस करके डंप कर देते हैं। बट ये कौन सी कंपनी में होती है जिसका मार्केट कैपिटल और जिसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत पुअर होता है? तो आपको ऑटोमेटिकली अंदाजा लग सकता है, जब आप देखोगे ये शेयर ऐसा भाग रहा है और इसकी मार्केट कैपिटल कुछ भी नहीं है, इसकी कंपनी का ग्रो भी कुछ नहीं है, इसको प्रॉफिट भी कुछ नहीं है, फिर ये भी भाग रहा है, तो दैट इज अ डंपिंग पॉलिसी। तो उसमें नहीं जाना, छोड़ देने का, तू जा जिधर जा रहा है। तो हमेशा बढ़ता भी नहीं ना। अभी जो इंडियन रेलवे का आईपीओ निकला था वो तो नेगेटिव से चालू हुआ था और अभी शायद स्क्वायर ऑफ पे। कौन सा? इंडियन रेलवे का जो अभी निकला था आईपीओ, आईआरएफसी ना, IRFC। आईआरएफसी हाँ, इज अ फाइनेंशियल कंपनी, उसका बैंक से रिलेटेड है, तो उसके पास पैसा कहाँ से आने वाला है? जब रेलवे चलेगी, और उन्होंने गलत टाइम पे लॉन्च किए, अभी रेलवे चल नहीं रही ना, ट्रेनें बंद है ना, हाँ, कैटरिंग सर्विसेज सब बंद है, टूरिज्म बंद है, 50% ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन चल रही है ना, और पीपल ट्रैवल भी नहीं कर रहे हैं, लोग ट्रैवलिंग भी कम है ना। तो जैसे ही ये वापस से रिज्यूम होगा तो वो आरएफसी का जो 25 रुपये अभी चल रहा है वो डबल हो जाएगा बेटा। सर वो जो गेम स्टॉप का जो न्यू ये हुआ है उसका, क्या चीज? गेम स्टॉप। इंडिया में उतना पॉसिबल नहीं क्योंकि अपने यहाँ 10% 5% पे स्टॉप है डेली का। नहीं, 5%, 10%, 20% भी है, लेकिन वो वैल्यू एडेड हाँ, स्टॉक के ऊपर है। 20%, 20% के ऊपर नहीं है, मतलब एक दिन में इंक्रीज नहीं अलाउड है। हाँ, और अमेरिका में शायद ऐसा रेगुलेशन नहीं था तो लोग ने बहुत हाइक किया था। हाँ लेकिन जैसे सर अभी वॉल स्ट्रीट का हुआ था ना, जीएनए हाँ, का। वो सब अलग अलग मार्केट की स्ट्रेटेजीज है, कुछ वहां पे अलग रूल्स है, इंडिया में अलग है, ठीक है ना, ये आपको समझा? और सर जैसे मतलब अभी कोई इंडियन नेशनल है उसको अगर फॉरेन एक्सचेंज में मतलब के इन्वेस्ट करना है तो वो पॉसिबल नहीं है। क्या, फिर से बोलिए, आवाज क्लियर नहीं आ रही। मतलब जो सर इंडियन नेशनल है, इंडिया से फॉरेन एक्सचेंज जैसे वॉल स्ट्रीट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, ऐसा कुछ? कर सकते ना, क्यों नहीं कर सकते, लेकिन फिर आपको उसका टैक्सेशन पे करना पड़ेगा ना, जो आपको इनकम जनरेट होगी, है ना, उसके भी तो ऐप अवेलेबल है ना। ऐसा कुछ रूल है ना सर के मतलब के जो बीएससी के इन्वेस्टर्स है वो वॉल स्ट्रीट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते ऐसा? नहीं नहीं, ये मतलब आप किसकी बात कर रहे हैं, हम कॉमन पर्सन की बात कर रहे हैं कि
हम जैसे लोग ना जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं यस सर, स्टॉक, कॉमन पर्सन है जो ना? कॉमन तो इन्वेस्टर्स जैसे है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जब हम बीएससी और एनएससी या कोई भी स्टॉक खरीदने रहता है तो हमें हमारे पास एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, मीडिएटर, जो हमें हेल्प करता है परचेज करने के लिए शेयर को। हम डायरेक्टली नहीं शेयर खरीदते ना, वी कैन नॉट शेयर परचेज शेयर डायरेक्टली फ्रॉम एनएससी। हम शेयर किससे खरीदते हैं? हम एंजल ये शेयर खान होता है, ब्रोकरेज रहता है ना। ब्रोकरेज फर्म के थ्रू खरीदते हैं ना। हाँ तो वैसे फॉरेन एक्सचेंज के भी ब्रोकर अवेलेबल है ना, तो हम वो ब्रोकर को रजिस्टर करेंगे, उनको एनुअल मेंटेनेंस चार्ज पे करेंगे, उनके अकाउंट में हम पैसे डिपॉजिट करेंगे, वो डॉलर में कन्वर्ट करके हमको देंगे अगर हम फॉरेन करेंसी के हिसाब से खरीद रहे हैं, है ना? तो सर शेयर मार्केट से ये मनी लॉन्ड्रिंग होता है? होता है, लेकिन वो फंस जाते हैं। वो पूछ पैसा रहा हूँ मैं घुमाना सर। बोल रहे हैं ना आप, यहाँ से वहां पैसा घुमाना। लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग तो यस ज्यादातर सर। कैश में होता है ना। लेकिन आप किसी के इसमें डालोगे, वो इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट करेगा, तो उसके बाद पूछेंगे ना आपके पास पैसे कहाँ से आए इतने सारे। जब भी कोई पैसा वाइट मनी में होता है, अगर धीरे धीरे होता कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर एक साथ होगा तो फिर पूछा जाएगा ना यहाँ कहाँ से आया पैसे, तो आप क्या बताएंगे, है ना? तो आपके पास चेन ऑफ हिस्ट्री होना चाहिए ना आपके पास पैसे का। यस, क्लियर है? यस सर। हम्म? तो हाउसिंग फाइनेंस मालूम है आपको, समझा? म्यूचुअल फंड जैसे इंश्योरेंस कंपनी होती है वैसे म्यूचुअल फंड होती है। म्यूचुअल फंड और वेंचर कैपिटल, वो लोग शेयर, स्टॉक्स, डेब्ट, डिबेंचर्स, कमोडिटीज इसमें काम करते हैं। ये आपके बिहाफ में शेयर खरीदते हैं और फिर बेचते हैं। वेंचर कैपिटल भी सेम ही है क्या सर म्यूचुअल फंड से? हाँ, डिबेंचर्स उनके थोड़ा सा रोल अलग रहता है, बाकी कुछ नहीं। बट अभी इतना हाईलाइट नहीं है, वेंचर कैपिटल स्टॉप हुआ है। मैक्सिमम म्यूचुअल फंड ही अभी ज्यादा मार्केट को कवर कर लिया। म्यूचुअल फंड सर है क्या, लेकिन एग्जैक्टली थोड़ा डिटेल में बताइए। म्यूचुअल फंड जैसे बेसिकली क्या होता है कि जैसे आप सोच रहे होंगे कि मैं शेयर में इन्वेस्ट करूं, बट आपके पास नॉलेज नहीं है इतना और आपके पास वक्त नहीं, क्योंकि आपके और भी दूसरे काम हैं, और लेकिन पैसे हैं आपके पास। आप चाहते हैं कि मेरा पैसा मुझे थोड़ा और उसमें इनकम में इजाफा करके दे, तो बैंक में रखने से आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, वो भी कम ही मिलेगा, 6%, 5%, 4% इंटरेस्ट मिलेगा, वो भी साल का। तो उससे आपको कुछ फर्क नहीं होगा, मतलब फायदा नहीं इतना। तो हम क्या करते हैं, हम स्टॉक की नॉलेज नहीं करना चाहते, स्टडी नहीं करना चाहते, लेकिन हमें फिर भी थोड़ा पैसा मिले बैंक से ज्यादा, एफडी से ज्यादा, जो फिक्स डिपॉजिट हमें देता है, तो हम क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड पे जाते हैं। म्यूचुअल फंड हमसे पैसे लेता है मंथली या इन अ बल्क अमाउंट। जैसे एक साल में आपने 1 लाख रुपए एक साथ दे दिया, या तो आप 2-2 हजार, 500-500 रुपए हर महीना दे दो, मतलब लो इन्वेस्टमेंट स्कीम के हिसाब से, एसआईपी जिसे बोलते हैं, सिर्फ सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करके जो बोलते हैं म्यूचुअल फंड। तो एसआईपी में कैसा, हर महीने बैंक से आपका नॉमिनल अमाउंट डिडक्ट होते रहेगा, और फिर वो जैसे जैसे आपका अमाउंट मिलते रहेगा, आपको यूनिट देंगे उसके बदले में। 2,500, 2,000, 3,000 जितना भी आपने लिया, तो वो आपको यूनिट देंगे। यूनिट का एक प्रोपोर्शनल रेट होगा आपके अमाउंट डिपॉजिट के ऊपर। फिर वो जब अमाउंट कलेक्ट उनके पास आ जाएगा, म्यूचुअल फंड कंपनी के पास आ जाएगा, वो क्या करते हैं, उनके पास एक हाईली एजुकेटेड पर्सन होते हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिनको नॉलेज होती है कि कौन सा शेयर खरीदना चाहिए, तो वो शेयर खरीदते हैं। अब वो शेयर आपके बिहाफ में खरीद रहे हैं। अब उस शेयर, वो लोग कौन से शेयर करते हैं, जिसमें डिविडेंड अच्छा मिले, जिसमें प्रॉफिट अच्छा हो, स्ट्रॉन्ग स्टॉक हो, तो वो खरीदते हैं। अब वो डिविडेंड जो मिलता है वो आपको नहीं देंगे, वो खुद रख लेते हैं। इतना ध्यान में रखिए अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे। अगर स्टॉक खरीदोगे तो डिविडेंड आपके बैंक अकाउंट में आएगा, म्यूचुअल फंड खरीदोगे तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। डिविडेंड डिविडेंड मतलब सर एग्जैक्टली क्या होता है मतलब? कंपनी का प्रॉफिट शेयर। जैसे मैंने कल बताया था लेक्चर में कि अगर कोई कंपनी अपना क्वार्टर रिजल्ट प्रेजेंट करती है, क्वार्टर रिजल्ट में उसको करीब अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है, 1,000 करोड़ का प्रॉफिट हो जाता है, और कुछ अमाउंट वो अपना कैश फ्लो में सेविंग में रखता है, और बाकी अमाउंट वो चाहता है कि शेयर होल्डर को खुश करे, प्रॉफिट के तौर पे दे,